Good evening, everyone. Am I audible to all of you? Everyone can hear me, right? Yes, sir. Last time we had discussed the paper, and I think we had reached almost 70–80% of it, and then we had to cut in the middle because there was a session already scheduled at 9:30. So today I would just complete that discussion. The idea was to show you the number of questions that come from what topics. So when we had started. So we had started with when we started the discussion, there were RC questions, then there were vocab kind of fill in the blanks. So I would say vocab fill in the blanks. Then there was vocab, idioms and phrases. So there was idioms. So there were 12 questions from here. There were around 5 questions from here. It seems around 4 questions from here. And then there were grammar. So grammar also was not very difficult, so around 4 questions, I think. This week I'm just giving you. And then there was again vocab, which was word usage. So we haven't discussed this, but the word usage is one of the common varieties of questions that come in this exam. This was there in CAT once upon a time, in which a word is given to you, and that word is used in 4 different ways. One of the ways is not making sense, and that became the answer. A similar kind of question. So if you look at this 12 plus 5, 14 plus 4, 19 plus 4, 23, then there are around 4–5 questions here, 27, and there are around parajumbles in which there is missing sentence. So this around 4–5 questions, and then you have the parajumble again 4–5 questions. So RC is just 25 or even less than 25% of the paper, which makes it, I would say, much more easy to prepare for, because RCs take time. So as far as attempts are concerned, because there are fewer RCs, you can attempt the entire paper. But what we observe when we go through all the questions is that vocabulary is dominating the entire paper. So our sessions have to be driven by vocabulary. Lots of questions on vocabulary, fill in the blanks, idioms and phrases. Because the more I take, the more you read, the better you become. So in the exam, it's quite possible that 1 or 2, 3 here and there might hit, and that actually makes a difference between clearing the cutoff and getting a very good score. So last time, I think I was at a question which was on fill in the blanks. So that question was giving us some trouble. I think this was the question, 34th wala question tha. Anyways, we'll just leave that now. And we'll start with this discussion here. One of the statements given below contains a word used incorrectly. Choose the option which has the incorrect and inappropriate. So there is a word which we don't know which word that is, but as you read, you will realize which word it is. Option A says there was a scenic spot not very far away from our cottage where we used to go for picnics. Looks fine. Scenic spot. Such a spot on his career was difficult to ignore. He was unsure if he could. So you know that there is the word spot which is coming in all the sentences. So this is likely to be the word. So first of all, they don't give you the word. You have to identify the word. So this is the word. This is the word. And then this is the word. This is the word. She wanted to make a good impression, but at the last moment, she discovered a spot of ink on her collar. Okay, a spot of something. Yes, spot on. So, ये तो सही है, because we know how to use this. Such a spot on his career. There was a scenic spot at not very far away. Scenic spot. Again, it looks good. Is this correct? Such a spot on his career.
This sounds a bit, again, it's very difficult to make out what is the error, what the error is. But apparently seems that this is not making sense. Spot on तो सही है. He discovered a spot of ink. ठीक है, there was a spot of something. So this also looks good. There was a scenic spot not very far away. Spot is a place here. है ना? ये place है. Spot on means accurate, to the point. A spot means such a spot on his career was difficult to ignore when deciding promotions. Now this, I think this should be a blot on his career. Dhabba nahi hota, kala dhabba. This is what I don't know. Yes, people, what do you feel? Do you know the answer? Because we don't have the answers of these questions. But I believe that this is what it means. Agree, or do you think there is something more to it? Because I'm not able to make out. I think it should be B. Yes, people, your opinion. सर मार्क भी तो आ सकता है, सच मार्क ऑन हिज करियर. मार्क क्यों है ना, बिकॉज इट डिफिकल्ट टू इग्नोर है ना, मुझे लगता है नेगेटिव इसका वो है. मार्क आई थिंक इज अ पॉजिटिव थिंग, यू नो, जो सच अ स्पॉट ऑन हिज करियर वाज डिफिकल्ट टू इग्नोर व्हेन डिसाइडिंग प्रमोशंस. So what I see is basically he is trying to put negative impression, and that's why a blot is something which I feel makes sense in the entire. This is what I'm catching the tone of the sentence. Such a blot on his career was difficult to ignore when deciding promotions. Now you might say, sir, positive bhi to ho sakta hai na. But then the problem is that when you decide to make it positive, then it doesn't make any sense to me. You don't use a spot for a positive word, for a positive statement. Kuch aur, yes, any other opinion that you have? Problem क्या ना, इसका आंसर आता No होगा. sir, B thing मुझे to भी be लग right. रहा है, आई थिंक सच अ स्पॉट ऑन हिज करियर, बिकॉज ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहा है. पॉजिटिविटी कोई मतलब नहीं आएगा इसका. Yes sir, B is right. धब्बा होता है ना, वो धब्बा वो बोलना चाह रहा है कि ऐसा धब्बा है ना कि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते व्हेन डिसाइडिंग प्रमोशंस. तो अपेरेंटली इट सीम्स टू बी द केस. अब प्रॉब्लम क्या होता है, देखो, आप मुझसे पूछो कि इसको डील कैसे करें. मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ अपने बच्चों को, कैट को खास करके, कि आप जब भी पेपर एनालाइज करते हैं, आप फोकस करें उस पे जो आप सॉल्व कर सकते हैं, ना कि उस पे जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे या आपको पता नहीं कैसे करेंगे. सो ऑलवेज इट इज दैट गोइंग टू बी कि मेरे को ये नहीं आ रहा था, वो नहीं आ रहा था, बट आप देखो कि आप कितना कर पाते. Only then you will realize the real potential of you. Lots of people will make a mistake in this kind of question. Of course, some of them will get it correct, some of them will get it wrong. But ठीक है, I think most of you would cut down on 2-3 options, और जो आपको लगेगा 19-20 करके मार्क करके आगे निकल जाओगे. ऐसे मिस्टेक्स होते रहेंगे. We can't stop it completely, and we can't even prepare for it completely. But some preparation is definitely better than no preparation, because that some preparation is going to increase the probability of your scoring 4 to 5 questions more than the average guy. And that decides the whole difference. Iska kya hoga? When the women were asked to join the protest, they refused to collaborate. Some treacherous relatives in Indian rupees collaborated with the British. ठीक है, collaborate सही है. ये cooperate नहीं लगता. She collaborated her thesis on their mental health. She interviewed many teens to collaborate her thesis on their. Corroborate होगा मेरे को लगता है, ये जो सब wrong लग रहा है. Collaborated with the filmmakers who were shooting crime. Sir, I think D is wrong. ये सही है. Instead of collaborated, cooperated should have come. Policeman. हाँ, हो सकता है. देखो, अभी ये है when the women were asked to join the protest, they refused to. हाँ, collaborate मतलब कि see, collaborate क्या होता है ना, two people coming on equal terms. When the women were asked to join the protest, they refused to. Okay, choose the word. देखो, मुझे क्या लग रहा है कि they refused to cooperate, or cooperate, collaboration, collaborated with the British, collaborated. ठीक है. She interviewed many Sir, teams. C is wrong. She got many teams to collaborate her thesis. मुझे लगता है ये corroborate होना चाहिए. Yes sir. You know what is corroborate? देखो, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको. Cooperate and collaborate same भी हो सकता है ना यार, क्यों नहीं हो सकता? At times, देखो, cooperate is equal to collaborate. आप बोलोगे सर कैसे? Collaborate थोड़ा सा पे होता है, cooperate एक आउटसाइडर भी कर सकता है. तो प्लीज collaborate. ठीक है भाई, collaborate करना चाह रहा हूं मैं, तो इसमें आप बहुत फर्क नहीं दिखा सकते. बट एक जगह पे मुझे है ना बहुत डिस्टिंक्ट एरर दिख रहा है, और वो है सी वाले में. She interviewed many teens to collaborate her thesis.
अब मुझे बताओ कि इंटरव्यू से कोलैबोरेशन कैसे हो जाएगा, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट है, या अच्छा मेरा, हाँ मुझे ये बताओ कि इंटरव्यू से कोलैबोरेशन कैसे हो जाएगा। तो बत्ती जल रही है दिमाग की। शी इंटरव्यूड मेनी टीम्स टू कोलैबोरेट हर थीसिस ऑन देयर मेंटल हेल्थ। पता है क्या हो रहा है, ये बंदी जो है ना, ये बेसिकली कोई रिसर्चर होगी। वो रिसर्चर एक थीसिस बनाता है कि भाई मतलब टीनेजर्स को प्रॉब्लम होती है जब उनके पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं एक पर्टिकुलर करियर पाथ चूज करने के लिए। ये थीसिस तो बना दिया आपने, अब इस थीसिस को आपको सपोर्ट चाहिए ना, एम्पिरिकल एविडेंस चाहिए। तो आप जाके टीन्स को जाके इंटरव्यू करोगे, तो 50 टीन्स बोलेंगे हाँ हमको तो मेंटल प्रेशर आता है। तो कैन आई से देयर corroborating her thesis, many teams she interviewed many teams to, तो आप इंटरव्यू कर रहे हो ताकि आपकी थीसिस को एक सपोर्ट मिले एविडेंस का। कैन आई से corroborate makes more sense, which means equal to support as evidence, yes or no? भाई आपको मैं सपोर्ट करूंगा यार, आप क्रिकेट मैच के लिए Yes, sir. समझ रहे हैं कि आपको corroborate कर रहा हूँ यार, ऐसा मत कर देना। Yes, sir. ठीक है, तो corroborate ही corroborate है, collaborate नहीं, क्योंकि ये स्ट्राइक होने वाली बात है। अगेन दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट, सो दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन, बट मुझे क्लिक हुआ तो मैंने बोला यार सी आंसर होगा इसका, बिकॉज मुझे लगता है कि सी इज आउटवर्डली रॉन्ग, आउटराइटली रॉन्ग, whereas the other can be cooperate collaborate, ठीक उस पे हम बहस कर सकते हैं यूसेज के ऊपर, बट सी इज डेफिनेटली इनकरेक्ट। Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चंस को है ना पकड़ने का थोड़ा आपको स्मार्टनेस भी चाहिए होता है, कि यहाँ तो कोई सेंस बन रहा है, यहाँ कुछ थोड़ा सेंस बन रहा है, यहाँ थोड़ा अजीब सा है, लेकिन इस पर ये बिल्कुल सेंस नहीं बन रहा, तो ये आंसर दे। बच्चे पता है क्या करते हैं, क्वेश्चन में फ्लॉ निकालने लगते हैं, अपने को बेस्ट आंसर मार्क करना है। ठीक है, आगे बढ़े। इसका आंसर क्या होगा, इट वाज अ लॉन्ग जर्नी ऑफ बाय रोड एंड दे हैड येट टू फाइंड अ बोट दैट वुड हेल्प देम क्रॉस द रिवर। सही लग रहा है? Yes, sir. तो कौन सा वर्ड लग रहा है, क्रॉस है क्या? क्रॉस क्रॉस। तो कई मजेदार क्वेश्चंस भी होते हैं, ऐसे क्वेश्चन मिलते भी नहीं एक्चुअली, पता है, because it's all depends upon how you use the word. Of course we'll try to make some questions like this. It was long journey by road and they had yet to find a boat that would help them to cross. ठीक है, cross the river तो मुझे सही लग रहा है। We were told that she had lived through tough time which made her cross and cranky. Cross मतलब पता है क्या होता है, चिढ़ जाना। वो मूवीज होती है ना इंग्लिश की, मैं देखा हूँ उसमें, why are you so cross with me? So I think this might be correct. This the mistakes of his youth are the cross that he has to bear. Okay. क्रॉस होगा ये। कुछ पता चला, कितनों को चमका ये? आई थिंक आई एम नॉट। क्रास पता है इसका मतलब, क्रास का So why not C? एक्चुअली क्रास का जो मीनिंग है ना, विद शोइंग नो सेंसिटिविटी होता है क्रास। कि क्रॉस का यहाँ मीनिंग क्या होगा, मेरे को वो समझ में नहीं आता। अब क्रॉस का जो ये जो क्रॉस नहीं है, सी वाला क्रॉस, वो क्राइस्ट ने क्या किया था पता है क्या? अपने कंधे पे है ना, ही वॉज कैरिंग द क्रॉस। तो वहां से एक इडियम निकला कि आप कोई कोई जिम्मेदारी या कोई ऐसी चीज है जो आप, मतलब कोई नेगेटिव चीज जो आप लेके जाते हो। So the mistakes of his youth are the cross that he has to bear for the rest of his life. So basically Christ was carrying the cross on his back and then he was crucified. So when you carry the cross on your back, you basically take something as a burden for the rest of your life. देखो ये क्रॉस तो मुझे पक्का पता है, ये क्रॉस होता है एनॉइड। ये तो खैर नॉर्मल क्रॉस है, तो ये दोनों में से आंसर नहीं होगा, बिकॉज मेरे को ये क्रॉस का मतलब समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। मतलब ये क्रॉस अगर डालोगे ना, तो आप बोलोगे जोक्स आर वल्गर, दे आर क्रॉस। अब एक क्रॉस का मतलब होता है एनॉइड, तो वो तो फिट हो गया ऊपर। अब ये क्रॉस क्या होगा? यस पीपल, क्लियर टू एवरीवन? कैरी द क्रॉस वो ईडीएम है, यू कैन जस्ट चेक इन द डिक्शनरी, वो ईडीएम है, मिल निकलेगा वो।
ये नहीं, ये प्रास है, प्रास मीन्स insensitive. आगे बढ़े. D is the answer. D is the answer. No doubt about it. Yes, sir. थोड़ा डिफिकल्ट है यार, ये बच्चा नहीं पकड़ पाएगा. Someone who is not very much literary will not be able to make out these kind of questions. वो ठीक है, आप नहीं कर पाओगे तो कोई भी नहीं कर पाएगा. ऐसा नहीं कि आपसे ही नहीं होगा, आप जो बैठे हैं यहाँ 10 लोग नहीं होगा. If 10 people cannot do it here, the chances are that many won't be able to do this question. और किसी का हुआ तो तुक्के में हुआ है. What you can do is you can use elimination. ये तो पक्का नहीं है. अब होता क्या है कि ये क्रॉस जो है, ये भी पता होना चाहिए कि भाई क्रॉस का होता है एनॉइड भी होता है. ये भी पता होना चाहिए कैरी द क्रॉस मींस बेसिकली टेक समथिंग एज अ बर्डन विथ यू. अनफेयर जो होता है, जैसे भाई किसी ने जवानी में कुछ गलतियां की हैं तो उसको आप क्यों पेनलाइज कर रहे हो उसके उसमें आकर के. बट इट इज समथिंग दैट इट्स लाइक अ क्रॉस दैट यू कैरी, दैट यू बेयर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. कई बार ऐसा होता है ना कि भाई 10th में परसेंटेज इतनी कम है या ग्रेजुएशन में 50 के नीचे है तो यू बिकम इनएलिजिबल फॉर मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब. If your 10th or 12% graduation percentage is below 50, you're ineligible for most of the government jobs. Of course that should not, but that is the cross that you have to bear for the rest of your life. That is how I would put it as. ठीक है, सही है. 38th क्या होगा आंसर, बताओ जल्दी. The cricket match was heading for a draw. Heading to a draw है, heading for a draw है, पता नहीं मेरे को गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे. Was lucky enough to win the draw. हाँ लकी, अच्छा ड्रॉ है क्या, सॉरी मैं बोला हेडिंग है. हेडिंग फॉर ड्रॉ, ठीक है. ड्रॉ तो पता है, विन द ड्रॉ भी सही हो सकती है. इन द ड्रॉवर, इन द ड्रॉ, ड्रॉ है ड्रॉवर है. ड्रॉवर. Drawer. सही लग रहा है, सी आंसर होगा ना. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. थोड़ा चौकन्ना रहना. आई थिंक ड्रॉवर होता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. Yes, sir. Yes, sir. ड्रॉ वाटर मतलब पानी खींचना. हेडिंग फॉर अ ड्रॉ, मैच का ड्रॉ होता है, आपको पता है. तो एक ही बचता है अपने पास, बी और सी. बट यू विन द ड्रॉ. ड्रॉ मतलब एक निकाला पर वो मतलब लकी वो निकाला, तो वो ड्रॉ है. सही है. आई थिंक सी इज द आंसर. अब इसमें अगर आप गलती कर बैठो तो फिर तो गड़बड़ है ना. 40th का आंसर क्या होगा. फोर्टीथ का आंसर क्या होगा. Her admirers considered her demeanor to be of great state and refinement and most impressive. Uttar Pradesh, being the most densely populated state in India, has the highest number of representatives in parliament. 1 minute. So what do you think is the word? Her admirers considered her demeanor to be of great state and refinement. Sir, state award. State, हाँ. तो ये तो सही लग रहा है मेरे को. बी वाला एकदम सही है, बी वाला फिट बैठ रहा है एकदम, तो ये तो सही है. To state the grounds, to state means to mention. Yes. Can you state the terms of the Yes, sir. तो ये भी सही है. The Sir, state Sir, A A is होगा. wrong. आंसर A ए, is wrong. पता नहीं पर ए राइट, बिल्कुल सही. You arrived at the answer by elimination. Delhi's pollution is in such a bad state, the bad condition. तो सही है ना. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाओ. बाद एनालिसिस नहीं करनी है कि क्यों है क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन करो. अब आगे आइए. जो जैसे ही देखते हो ना 5 सेंटेंस वाला. सी इन माय taken 4 sentence parajumble, thinking that 4 sentences are doable. 5 sentence में प्रॉब्लम क्या होती है ना कि this should be your priority only when you have finished everything. मैंने पूरा vocab कर लिया, मैंने idioms, phrases, fill in the blanks, grammar, word usage सब कर लिया है. अब मुझे बचता है parajumble. तो ये आपका फाइनल फ्रंटियर होना चाहिए. और इसमें भी आपके पास 2 वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस है, एक 5 वाले हैं, एक 4 वाले हैं. तो प्रेफरेबली आप पहले 4 वालों को पकड़ो. हो सकता है कि अगर आपको 3 क्वेश्चन छोड़ने हैं तो 5 सेंटेंस वाले पैराजम्बल को छोड़ दो. इनफैक्ट योर आरसी शुड बी अ प्रायोरिटी हायर देन योर पैराजम्बल. क्योंकि 5 वाले में अगर आप फंसे तो पहले तो ये बहुत टाइम ले लेगा, और उस टाइम लेने के बाद में भी कोई गारंटी नहीं है कि इसका आंसर सही होगा कि नहीं. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. यू डिवोट 5 minutes to it and then still you don't know whether the answer is correct or not. It's better that you finish everything else and then you come towards the end in this type of question. So I know that I will not prefer 5 sentences, I will prefer the 4 sentence ones. इसका आंसर क्या हो सकता है. हमने तो पैराजम्बल किया भी है ढंग से. Can you tell me the answer of this?
You give me the answer. I will keep quiet. You can try, but be serious about it. कोई भी आंसर लिखेगा नहीं चैट बॉक्स में, चाहता हूँ कि सब लोग आंसर निकालें, मुझे बताएं किसका आंसर क्या है. Done, sir. कौन कर लिया, क्या नाम है? Adi. आदि ने जल्दी कर लिया, बहुत बढ़िया. बाकी लोग जल्दी करो. Done, sir. Done, sir. हमने कर लिया. आंसर क्या है? 1423. 1432. 1432. 1432. 1432. बहुत सारी आवाजें ऐसी आई है मेरे को. 1423. ओके, तो एक 1423 आया है, बढ़िया. और कुछ है? ये क्या है? मैंने कहा था ना, इसको पकड़ो पहले. ये भी तो पकड़ना पड़ेगा ना. 1432. एक अदर्स क्लेम है ना, तो इनको कंपेयर करना पड़ेगा किसी के साथ. द सेंट्रल बैंक, द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हैज अप्रूव्ड बिटकॉइन एज एन ऑफिशियल करेंसी. मुझे ये बता दो कि दिस विल डैमेज द एनवायरनमेंट किसकी बात कर रहा है? Bitcoin. ये पूरे हिस्ट्री को, मतलब ये जो हैज अप्रूव्ड बिटकॉइन है ना, तो कैन आई से दिस एंटायर एक्शन हैज बीन रेफर्ड टू बाय, ये जो पूरा है, देखो ये दिस विल जो है ये तो यही है, ये पूरा एक्शन को दिस कहा गया है. अब इकोनॉमिस्ट्स क्रिटिसाइज दिस मूव एज अ पोटेंशियल रिस्क, अदर्स क्लेम दिस मे मेक मनी लॉन्ड्रिंग इजी एंड. Sir, this will refers to money laundering into. हाँ, हो सकता है, वही देखना है ना अपने को. अदर्स क्लेम दैट दिस मे मेक मनी लॉन्ड्रिंग इजी एंड आल्सो यूज अप अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एक्सपर्ट्स foresee that this will damage the environment as well as the economy. Okay. So this will damage मतलब क्या हो रहा है? This may make money laundering easy and also use a lot of electricity. Environmental damage कहाँ से हो सकता है? इससे Sir, use a lot of electricity. हाँ, मतलब बिटकॉइन से एनवायरमेंट का क्या लेना देना. तो कई बार क्या होता है ना, चमकता देर में है, लेकिन इससे वही मैं कहता हूँ ना कि बहुत जल्दी में करोगे तो रॉन्ग भी कर दोगे. तो कहना ऐसे कि जो एनवायरमेंट की बात हुई है 3 से है, तो उसका मतलब 3 2 पेयर है, इनसेपरेबल Yes, हो, sir. Yes, sir. No, for 1432. है ना. अब 4 का प्लेसमेंट है, अब 4 को एंड में रखना बेवकूफी है, बिकॉज दिस मूव तो फिर यह वाला मूव होगा ना, इसमें कौन सा मूव हो रहा है, तो आंसर तो ये होगा. देखो पेशेंस जो है ना, वो अपने को कल्टीवेट, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था. सब एलिमेंट्स को पकड़ लिए अपन ने, फिर हमने इसको भी पकड़ लिया. जब यहाँ पे आया तब दिमाग की बत्ती जली ना सबकी, कि एनवायरनमेंट तो यार मतलब बिटकॉइन के आने ना आने से एनवायरनमेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बिजली की दिक्कत से होगा. बिकॉज वंस यू टेक अप लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट मींस यू आर यूजिंग लॉट्स ऑफ कोल एंड थर्मल पावर एंड दिस एंड दैट माइट डैमेज हैव एन इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. सो डेफिनेटली दिस इज referring to sentence 3, and once C2 is a pair, you have no place for 4 except at the start. Easy question था, मानते हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मेरा कहना क्या है ना कि अब अपने 5 वाला पकड़ते हैं. You see the difference, you know. इसलिए आप अपने स्ट्रेटजी को ऐसा बनाएं कि आपके नंबर जो है, पहले 4 वाला खत्म करते हैं. 4 वाला ये जल्दी ट्राई करो. ये आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर, मैं भी खुद पहली बार देख रहा हूँ, बट ट्राई दिस क्वेश्चन, वी विल जस्ट डिस्कस आफ्टर दैट. Done, sir. Done, sir. Done, sir. डन एवरीवन? Yes, sir. आंसर दो जरा, सब आंसर लिखो. Sir, 4132. 4132. क्या क्या 4132. 4132. 4132 लोगों ने लिखा है. 4132. Yes, sir. 4132. जब बहुत लोग सेम आंसर दें ना, इसका मतलब आंसर सही है. क्वेश्चन इजी है. जब बहुत अलग अलग आंसर आए, मतलब गड़बड़ है कुछ. तो
तो आपने कैसे स्टार्ट किया? तो कोई आपने ये पकड़ा के इसको पकड़ा होगा ना, हाउएवर कैसे find Yes, sir. तो कैसे होगा ये? सेरेमिक्स की बात हो, Japanese artisans have been making ceramics known as yakuza since when these creations grew along. Okay, so since prehistoric है, तो बोले जाते हैं creation along the 2nd century है ना, 4-1 हो गया. Modern shops, however, display thousands of them, both handcrafted material. However, this find the bargain. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, सही है, सही है. टूरिस्ट है ना, तो टूरिस्ट हो जाएगा, तो 3-2 है, एकदम इजी. अब देखो ना, देखो अक्लमंदी क्या होती है कि हमने तो खर्च को बहुत डिफिकल्ट समझा होगा, बट नाउ वी हैव द प्रोसेस. तो इस प्रोसेस से क्या हुआ ना कि आपके कम से कम 4 सेंटेंस वाले इजीली बन जाएंगे. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड लीव दिस क्वेश्चन, क्योंकि बहुत टीचर्स को बहुत ढंग से नहीं, मतलब इसको पढ़ाते ही नहीं और ढंग से पढ़ाते भी नहीं है, और पढ़ाते हैं तो बहुत ही घटिया पढ़ाते हैं. तो इसका मतलब ये है कि अपने पास जो अपने को बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, बिकॉज इससे आपके तो पैराग्राफ्स बन रहे हैं ना, आपका जो सेंटेंस मिसिंग वाला नहीं वो भी बनने लगेगा. तो आपके पास 4+4 8-10 क्वेश्चंस का एक वो बन गया स्पेस, जहां से आप नंबर ला सकते हैं. ऑफ कोर्स नॉट ऑल ऑफ देम वुड बी करेक्ट, बट एटलीस्ट अगर आपने इजी क्वेश्चंस पहचान लिए तो आपके बहुत नंबर आ जाएंगे यहाँ से. Sir, what should be our attempt, sir? Good attempt out of 45. 45 का टाइमिंग कितना होता है? डू दे चेंज? 40 minutes. 40 minutes. देखो, ideally speaking, you should attempt all the questions. I will tell you why. Lots of questions are so easy to read that they can be done in, I think word usage क्या लगता है 40 सेकंड में बन जाता था. हाँ Sir, but in doing all the questions, sir, our accuracy drops down. हाँ, नहीं तो अपन क्या कर सकते हैं ना, इसको प्रायोरिटी बनाएंगे. प्रायोरिटी का मतलब ये है कि सबसे पहले वो कैप खत्म करो जल्दी जल्दी, idioms, phrases, fill in the blanks, word usage जल्दी जल्दी खत्म करो. उसके बाद फिर पकड़ो ग्रामर को, फिर आरसीज पे आओ, फिर एंड में आप पैराजम्बल्स पे आओ. 40 मिनट्स है तो आइडियल अटेम्प्ट मेरे को क्या लग रहा है ना कि 40 मिनट है तो आई वुड गिव यू एटलीस्ट टारगेट ऑफ हैविंग 1 क्वेश्चन पर मिनट. 40 का आंकड़ा टच करेगा ना तो ये बेटर होगा आप लोगों के लिए. आई मीन अ गुड स्टूडेंट. मैं इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि बिकॉज लॉट्स ऑफ वोकैबुलरी इज देयर, सो फिर आपका थोड़ा अटेम्प्ट जो है ना, बट आई थिंक एनीथिंग इन द रेंज ऑफ 35 प्लस इज अ गुड अटेम्प्ट. Cutoff was 28 questions. कट ऑफ के मार्क्स कितने होते हैं वैसे यूजुअली? Sir, last year it was 28 question, 112 for general category. 112 आया हुआ तो सही कर, मतलब क्लियर कर लिया कट ऑफ, राइट? Yes, sir, but we need little more than that. हाँ, लेकिन मोर देन दैट. इसका मतलब ये है कि अगर आप 40 अटेम्प्ट करोगे तब जाकर के आपको थोड़ा उससे ज्यादा आएगा. तो मेरा आरसीसी 20 मिनट के आसपास ले लेते हैं. इसलिए मैं कहता हूँ ना बार बार कि पहले आप जल्दी जल्दी है ना, आप सब बीए खत्म करो जल्दी एकदम फटाफट. एंड वंस आई फिनिश ऑल द बीए क्वेश्चंस, दिस इज द कट ऑफ ओनली फॉर इंदौर, आल्सो फॉर दिस वन, दिस प्लेस क्या नाम है, जम्मू का, जम्मू रोहतक. Sir, Jammu has different exam, JIPMAT, and Rohtak has different exam, IPMAT Rohtak. Okay, so so when you say that 112 was the cutoff, it was only for the verbal section of Indore. Yes, sir. अब इसमें क्या हो रहा है ना कि I will tell you what how the person who wants to get a score much better than 28 112, I mean he has to firstly attempt around 40. He has to be very quick. 40 क्वेश्चन उसको पहले करने पड़ेंगे. उस 40 क्वेश्चंस में से क्या होगा ना कि जैसे आरसीज है, अब आरसीज में भी आप देखोगे ना तो देयर आर 6 क्वेश्चंस इन एवरी आरसी. सो एज यू रीड the RCs and you solve the questions towards the end, because you have read the passage 3 times, the last 3 questions will not take much time from you, because to answer the first 3 questions you have anyways read the passage 3 times. तो आरसी का जो एवरेज टाइम आ जाएगा ना वो कम होते चले जाता है as you move from every question to the next. तो इसलिए मैं क्या करता हूँ ना कि जो 12 क्वेश्चन आपके आरसीस के हैं ना उसको मैं एक टाइम दूंगा, बोलूंगा यार ये 12 क्वेश्चन आपको मोटा मोटी है ना 6+6 12 मतलब 15 से 18 मिनट में हो जानी चाहिए. ये आप टारगेट लेके चलो, आई थिंक ये पॉसिबल भी है, सही बताऊं तो. दूसरी चीज क्या होती है कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं होगी, मतलब आपके शायद हो सकता है कि 12 में से 3-4 रॉन्ग हो जाए, बट स्टिल आई वुड से दैट इज नॉट अ बैड डील. जो आपका ईडियम्स फ्रेजेस है उसमें भी, तो अगर मैं देखूं आपसे तो इफ यू अटेम्प्ट लेट्स से बारिंग पैराजम्बल्स छोड़ दूं अगर, तो अगर आपने मान लो कि 42 अटेम्प्ट किए हैं तब जाकर के आपके रियलिस्टिक चांसेस हैं कि आप 30 सही कर ले जाएंगे. तो 10 क्वेश्चन तो या फिर नहीं बनेंगे या फिर रॉन्ग हो जाएंगे बहुत सारे. दिस इज व्हाट आई बिलीव.
कोई कट ऑफ डिक्लेयर होता है या लोग आपको बताए हैं कि 112 है? Yes, sir, it is declared Declared. officially. इसलिए क्या सीटें बहुत कम है ना, तो चीजें इतनी आसान नहीं रहेंगी, because at the undergraduate level there are not so many seats, I believe. Yes or no? Yes, sir. And And that, everybody wants Indore. right. एक मिनट है, अरे मैंने the way I understand this paper, ये कैसा है ना कि how many seats do we have for the IP MET Indore? 152. 150. तो 150 सीटें हैं और कितने टेकर्स हैं? 20-30,000. Approximately. Yes. 30,000 approx. Now, if you look at the ratio of it, now that is where the trouble arises. If you look at the ratio of it, then there are कितने हैं मतलब 150, तो फिर 10 पे 1500 और 100 पे 15,000, यानी कि 200 बंदे पे एक सीट है, Yes, sir. और 200 तो सब लोग हैं ना, उसमें से जनरल कैटेगरी तो और कम हो जाएगा, तो 75 है, तो 75 का मतलब ये होता है कि फिर 4 टाइम्स हो गया। Sir, general seat 50 है सिर्फ. हाँ, 50, 52. इसका मतलब है कि यार 600 बच्चे के लिए एक सीट है। Yes, sir. 600 बच्चे के लिए एक सीट है, that makes it more competitive than UPSC एग्जाम। आप समझ रहे हो? Sir, but last year 30,000 gave, मतलब exact number is not there, but only 12,000 got positive score in every section. हाँ, तो होता क्या है ना, आई विल टेल यू, वो जो है ना क्वालिटी बहुत घटिया है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, पता नहीं कुछ दे देंगे ऐसे ही। दैट इज व्हाट हैपेंस इन इंडिया इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स, इवन पीपल हु राइट Yes, sir. फॉर्म भर के गए हैं, उनको लगता है कुछ तो हो जाएगा, होता कुछ नहीं उनसे। तो मतलब ऑफ कोर्स दैट मींस बेसिकली इन थियरी दो देयर आर 600 people, 600 seats, competitors for every one seat, it all boils down to कि भाई हाँ, मतलब वो एक फाइनल रखने में बहुत मैटर कर देता है वो चीज। अब इसी पेपर में देखता हूँ मैं कि मैं कितने क्वेश्चन मेरे से राइट हो जाते हैं, मैं खाली बीए की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं एक नया पेपर लेने वाला बंदा हूँ कि भाई आज मैं आईपी मेट देने का प्लान किया, मैंने एक पेपर सॉल्व किया जस्ट टू नो वेयर आई स्टैंड, तो मुझे लगता है कि भाई 13th बनना चाहिए था, 14th बनता, 15th बनता है ना, तो 1 2 3 बन जाते, कितना, एक मिनट, 1 2 3, और एलजीबीटी वाला बनता 4, लीला वाला बनता 5, है ना, ये बनता 18, 6 बन जाता, और 19 वाला शायद ना बनता। तो कहना इसे कि यहाँ से मेरे 6 क्वेश्चन बन जाते, Yes, sir. है ना। मैं Yes, एक sir. estimate लगा रहा हूँ कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, और प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है, क्या 28 क्वेश्चन करना रियली इट्स अ टफ नट टू क्रैक, दैट आई विल गेट टू नो वंस आई लुक एट द पेपर एंड देन आई से कि अरे ये मेरे को आता था। अब मेरे से गलती हुई बात अलग, बट ये बन जाता मेरे से। तो यहाँ पे कितने बन गए अपने? 6 बन गए, सही जा रहा हूँ? 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे आते हैं, ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 8, ये एकदम एलिमेंट्री है ये, इसको आप ग्रामर पढ़ना पड़ेगा मेरे को। 8, चलो ये नहीं बनता, ये नहीं बनता, ये बन जाना चाहिए था, ये रिवर्टेड बैक बनता है 9, बिकॉज ये बहुत एलिमेंट्री एरर है यार, इसको क्यों था आपको 9, ये डिफिकल्ट था, है ना, और ये 10, तो आपके 10 तो यहीं पर हो गए, ये तो मैं देखा नहीं अब तक, बट मैं एक ले लूंगा अप्रोक्सीमेशन की, चलो भाई 10, और यहाँ पे आते हैं, है ना, ये इजी था 11, ये ये भी मैनेजेबल था 12 13, ये डिफिकल्ट था, ये नहीं सही, ये बन जाता 13, ये ऊपर और डिफिकल्ट था, ये बन जाता 13, बाकी टफ थे, दोनों टफ थे, 33 34 13, फिर ये बन जाता 14, ये शायद थोड़ा डिफिकल्ट था, नहीं बनता 14, ये बन जाता 15, है ना, ये बन जाता, ये बन जाता, ये किया था क्या अपन ने, ये किया था कि ये भूल गए क्या अपन करना 38 वाला? Yes, sir, we left it. Yes, sir. 15, ये क्या होगा इसका आंसर बताओ जरा,
फ्लाउट मीन्स टू क्रॉस ट्रेडिशन इन a legal way. फ्लाउटिंग ठीक है, वेयर एंड नेसेसरी, फ्लॉन्टेड होगा ना ये तो। Yes, sir. She flaunted. हाँ, तो 14 15 15 15 15 बन जाते हैं, है ना, ये 16 बन जाएगा, ये भी वेरी इजी वर्ड यू सेड 16, और यहाँ से 2 बनते 17 18, 5 का मैं देखा नहीं हूँ। तो मैं क्या देख रहा हूँ पता है क्या, देखो मेरा कैलकुलेशन क्या आ रहा है कि अगर मैं आरसी छोड़ दूं, है ना, और ये वाला जो है ना, ये वाला क्वेश्चन छोड़ दूं, पैराजम्बल का पार्ट, तो मेरे 18 आराम से बन जाने चाहिए थे। अब आरसीज में 12 है, और यहाँ पर 1 5 है। 2 3 4 5, 12 5 17, तो 17 में से कम 8 10 सही करने हैं, 10 या 10 11। तो मुझे लगता है कि अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो 18 आपको यहां से आ जाते हैं, पैराजम्बल में आपने 5 वालों को छुआ नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स पैराजम्बल वाला जो है, और जो आपका आरसी है, तो उसमें से 12 और 5 17 बनते हैं। वो 17 में से अगर आपको 11 12 सही बन जाते, तो आपका शायद मोर देन कट ऑफ क्लियर हो जाता, द वे आई अंडरस्टैंड इट। Yes, sir. इसका मतलब क्या है ना कि एज एज एंड वेर यू स्टैंड राइट नाउ, it would not have been difficult for you to get around 20 question correct if I had given you this paper in 40 minutes. Yes, sir. हाँ, तो मैं वही दिखा दिया यार, मतलब मुझे लगा ठीक यस है, सर। मैं 2 ऐड कर रहा हूँ उसमें से, कि भाई चलो बंदे ने आरसी भी किया, पैराजम्बल भी फिल इन द ब्लैंक्स वाला कर लिया, तो क्या उससे 20 क्वेश्चन नहीं बनते, मतलब कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ही इज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट, अंडरस्टैंड्स अ बिट ऑफ ग्रामर, हैज डिसेंट वोकैबुलरी, लिखा पढ़ा है, 12 तक उसने टाइम पास नहीं किया स्कूल में, अब उसको 20 से अपने को 28 30 पे ले जाना है, 10 क्वेश्चन और बढ़ाने हैं। अब इस प्रैक्टिसिंग, सॉल्विंग, स्टडिंग हार्ड, कैन आई से दिस कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम, Yes, sir. है ना। तो यस एक सर। आती है कि ठीक है यार, पेपर इन इटसेल्फ इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, कि आई कैन फील कि अरे यार 30 क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत डिफिकल्ट हो, कैसे किया होगा किसी बंदे ने, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। बट लुकिंग एट दिस आई फील दैट हाँ यार, 30 क्वेश्चन सॉल्व किया कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं थोड़ा मारूंगा फाइट तो मेरा भी हो जाएगा। अब मैंने 5 वाला तो लिया ही नहीं पैराजम्बल, हालांकि मुझे लगता है 5 वाला बनेगा भी नहीं, बिकॉज इफ यू हैव 45 मिनट्स, सॉरी 45 क्वेश्चंस इन 40 मिनट्स, कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा यार, अनलेस यू आर वेरी वेरी फास्ट विद इट, बहुत फास्ट है एकदम, तो बात अलग है। अदरवाइज either you will have to get rid of one of the RCs or the 3 पैराजम्बल्स, और मैं बोलता हूँ भैया आरसीज को पकड़ो, पैराजम्बल को छोड़ दो, 5 सेंटेंस वाले, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व किया है तो हो सकता है कि भी 1 2 और अटेम्प्ट हो जाए, बट इफ यू सॉल्व वन ऑफ द पैराजम्बल्स यू विल रियलाइज, जैसे ये वाला पैराजम्बल है, दिस इज द फर्स्ट पैराजम्बल दैट वी हैव, राइट, प्लीज ट्राई दिस पैराजम्बल, आपको समझ में आएगा कि 5 सेंटेंस कितना मुश्किल करता है काम अपने लिए। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन and tell me the difficulty that you felt while solving this question.
Yes, people, have you got it? Or is it taking too much time? So 24153. और किसी का आवाज कोई और बोल दो. But ठीक है, regardless of the answer, did you take 43215. और टाइम कितना लगा आपको? 43512. अरे वो चालू हो गया, देखो ना, मल्टीपल वेरिएशंस आ रहे हैं. अब इसको देखो, पॉइंट क्या है ना कि 5 सेंटेंस वाला तो बिग नो होना चाहिए, unless you have finished everything else. Let's not become overly zealous about parajumbles, because वो कई बार है ना सुडोकू पजल की तरह होता है. People, it tends to attract people irrationally at times. तो उसमें होता क्या है ना कि चूंकि आपने इतनी प्रैक्टिसिंग की है ना, एक सर्टेन टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, इसको तो मैं करूंगा. बट देन यू पे अ वेरी हैवी प्राइस. You do all this at the expense of your RCs, which could have been much more doable. Are you getting my point? At the start, it Yes, sir. sense कि यार ये बहुत टाइम Yes, sir. तो एक तो बहुत हाईली इम्प्रोबेबल है कि राइट होगा, और राइट हो भी गया छोटा मोटा गलती हो जाएगा. तो अगर आप परसेंटेज ऑफ चांसेस देखोगे राइट होने के, तो ये 10-15% भी नहीं होगा. Sir, less than 1. हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये गलती नहीं करनी चाहिए ना अपने को. तो अपने को बहुत क्लियर कट पता होगा कि मुझे क्या छोड़ना है. क्योंकि जहां पर आपको लगता है कि बार्गेन बहुत बुरा है, तो आपका जो पेपर 45 क्वेश्चंस का है, वो तो एनीवेज 3 कम हो गया, 43 का हो गया. बट द गुड थिंग इज दैट इफ यू लुक एट द आरसीज हियर, उसको हमने देखा नहीं है अब तक. जैसे ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, 27th वाला, बताओ इसका आंसर कैसे होगा. जल्दी ट्राई करो. ये पैराजंबल विथ मिसिंग सेंटेंस है. टेल मी व्हाट वुड द आंसर दिस क्वेश्चन. Sir, D. Yes, sir. Yes, sir. D. Culture plays an important role in shaping the shopping experience. South Asia, for example, China, Asia factors mean that the time shopping. Oh my God, ठीक है. अच्छा, जेंडर वेरिएशन बाद में आया है. देखो, आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो मैंने आपको एक प्रिंसिपल पढ़ाया था. प्रिंसिपल क्या पढ़ाया था कि आइडियाज नए नए आते रहते हैं. अब बहुत लोग क्या करेंगे, बोलेंगे सर ये तो एंड में बोल रहा है कि यू आर अ मेल और अ फीमेल. तो आप बोलोगे ठीक है सर, एक काम करो, सीधा निकालो, डाल दो यहाँ पर. मैं कहता हूँ बेटा तो एंड में बोल रहा है ना, तो सेंटेंस तो यहाँ पर नहीं आ रहा, सेंटेंस तो शुरू में आ रहा है. तो आप पहले देखो कि ये मेल फीमेल का फंडा शुरू कहाँ, मेल फीमेल का फंडा यहाँ से शुरू हुआ है. देन देयर आर जेंडर वेरिएशन. दैट मीन जेंडर वेरिएशन अब तक नहीं आया है. अब पैराग्राफ के अंदर जेंडर वेरिएशन आएगा. तो जब जेंडर वेरिएशन का टॉपिक यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको यहाँ पे छेड़ के क्या फायदा. कहना है ये पक्का बाहर जाएगा. प्रमोशन में कहां से प्रमोशन लेके आ गए यार. एंड पीपल स्पेंड मच मोर टाइम इन शॉपिंग मॉल्स. तो ये कल्चर की बात है ना. अगर बाय एंड लार्ज लोग एंजॉय करते हैं, तो फिर फर्क क्यों है यूरोप और एशिया में. आपको समझ में आ रहा है. बाय एंड लार्ज मीन्स इन जनरल. तो एक तो आप बोल रहे हो बाय एंड लार्ज पीपल एंजॉय, और फिर आप बोल रहे हो कि साउथ ईस्ट एशिया में ऐसा होता है, यूरोप में ऐसा होता है. जब बाय एंड लार्ज पीपल एंजॉय कर रहे हैं, तो वेरिएशन क्यों आ रहा है फिर. इसका मतलब कहीं ना कहीं कल्चर इज अ इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. तो डी आंसर होगा इसका. एवरीवन इज क्लियर अबाउट इट. Yes, sir. यानी अगर आपने पैराजंबल किया है तो ये आपके लिए आसान हो जाना चाहिए. अग्री. Sir, from where we should practice questions like this of similar difficulty. मैं आपके लिए है ना, देखो आपके लिए तो मैं ये बनाया हूं, लेकिन ये पैराजंबल के फॉर्मेट में नहीं, ये पैरा कंप्लीशन के फॉर्मेट में, जिसमें लास्ट सेंटेंस गायब है. तो लास्ट सेंटेंस तो मैं गायब करवा देता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन पैरा सेंटेंस मैंने कहीं गायब नहीं किया. And of grammar also. ग्रामर तो पूरा कोर्स के अंदर पूरा बढ़िया बनाया हुआ है मैंने. देयर इज नो इश्यू अबाउट दैट. और प्लस मैं लाइव में बहुत ग्रामर कराऊंगा आपको. और आपका एक बार पैराजंबल बनने लगता है ना, पैराजंबल और पैरा कंप्लीशन, तो ये आपका आराम से बनेगा, बिकॉज इट इज जस्ट अ वेरिएशन ऑफ दैट. तो ऐसा नहीं है कि इसके सेपरेट, हाँ मैं कुछ बनाऊंगा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बट देयर इज नो टू वरी अबाउट इट.
Okay, sir. है ना? अब एक और क्वेश्चन वैरायटी का है, मेरे को लग रहा है एक अलग वैरायटी है क्या ये ऊपर, मैंने तो देखा नहीं है, एक मिनट है, ये क्या है? अच्छा सॉरी, ये भी तो है। ट्राई करो यार, 26 ट्राई करो। अरे यार आपका तो बिना आरसी पैराजम्बल के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे यार, ये तो बड़ा इजी पेपर लग रहा है मुझे। प्लीज ट्राई 26 वन, एवरीवन यूज द पैराजम्बल फंडा। C. Sir, C. हाँ C. C option. हाँ सही लग रहा है मेरे को सी। हाँ हाँ सही है। सिचुएशन क्या है ना? Nowadays, many teenagers and young adults around the world have to spend more time studying in order to get top grades. Therefore, studying values are Therefore, it would be better to learn how to apply। रे यार फालतू चीजें हैं, सब फालतू चीजें हैं, ये तो एलिमिनेशन से बन जाता है। बताओ कितना आसान पेपर है। दो तो यही बन गए यार, पढ़ने की जरूरत भी नहीं हो रही है, इसलिए 28 क्वेश्चन बन गए लास्ट ईयर। ये डिफिकल्ट, ये मेरे को समझ में नहीं आया। 25 क्वेश्चन मेरे को लग रहा है एरर है। ट्राई करो 25वां क्वेश्चन, प्लीज ट्राई 25th क्वेश्चन। This winter, I wish to go to the beaches for a holiday. I think I will go to Goa. So 24th question and 25th question are same option. So I think Sir, there is an option error. वो copied है। Misprint हो गया। मिसप्रिंट ये उन्होंने नहीं किया, ये लोगों ने किया है जिन्होंने। हाँ Yes, ये sir. पब्लिशर है। मुझे लगा, डू यू अंडरस्टैंड, मुझे लगा यार मैं आई डिड नॉट सी द अपर क्वेश्चन, आई जस्ट सॉ दिस क्वेश्चन Yes, व्हेन आई sir. वाज गोइंग फॉर द वीडियो। यार ये तो गड़बड़ है कुछ। एनीवेज चलो अच्छी बात है, कम से कम एरर तो है कहीं पे, बट दिस इज द एरर फ्रॉम दीस पीपल्स पार्ट, नॉट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द। तो मुझे क्या लग रहा है ना यार, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मतलब द वे वी फेल्ट इनिशियली कि ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट होगा। मुझे लगता है थोड़ा सा स्पीड चाहिए आप लोगों में, और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन सिलेक्शन चाहिए, थोड़ा सा है ना रिगरस प्रैक्टिस करो वोकैबुलरी की। इन दोनों से काम आपका हो जाएगा। इसका तो 28 ट्राई, 28 जरा 29 तो नहीं हो, 28 ट्राई करो। C. Sir, A. बी तो नहीं होगा, बी तो नहीं होगा, A. और डी भी नहीं होगा, ए एस सी होगा। ए इज बेटर, है ना? है ना? ए है ना? ए ऐसे रिलेशनशिप की कहीं बात नहीं हुई है नहीं नहीं, वो क्योंकि फालतू बातें हैं यार। रिलेशनशिप क्या करना है अपने को तो डेसिफर करना है ना। The whole concern of the passage is text. The nature of the relationship between the two will come to light. The complexity is not the nature of the relationship. The complexity is basically the script. ये जो है ना, ये the nature will come to light. तो are they comparing the script to discover the nature of the relationship or to discover the Indus Valley script? सर इंडस वैली स्क्रिप्ट। हाँ, तो वो मुद्दा वो है तो Indus Valley। इजी इजी ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये भी बनता है, ये भी बनता है, क्योंकि ऊपर वाला बनता है। 3 तो यही बन गए यार, 10 बोला था, है ना? ये मतलब 25वां ही बनता था, वो तो क्वेश्चन रॉन्ग है। 4 तो यही बन जाते। और 20 बोला था आपको मैंने, 4 यहाँ बन गए, 24। आरसी करना है अपने को, yes or no? So I have finished the entire paper almost, barring Yes. the questions from RCs.
और उसमें भी मेरे को क्या लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन तो सीधा सीधा आया, सीधा उठ के आया हुआ है। Sir, RC is also easy doable. हाँ फिर तो इसका 28 क्वेश्चन क्या था और तुम लोग निकाल लेते 28 क्वेश्चन, मेरे को लग रहा है तो जाओगे तो फोड़ के आ जाओगे। सर मॉक में नहीं हो रहा है। अब होगा, मॉक में भी होगा, तो मॉक अभी देने की जरूरत क्या है यार, पढ़ाई वढ़ाई हुई नहीं मॉक देने बैठ के। मॉक का सही टाइम होता है ना बेटा, देखो हर चीज का सही टाइम होता है, आप बहुत प्रीमेच्योरली कोई चीज करोगे तो फिर डिमोटिवेट हो जाओगे। मैं कार सीख रहा हूँ, 2 दिन सीखा, थोड़ा जो उठा के चला गया, ठोक दिया किसी को, फिर आइंदा कार चलाने की हिम्मत नहीं होगी, है सर कि? अब तो बोर्ड्स है, फिर तुरंत बोर्ड्स के बाद तो एग्जाम ही है। हाँ तो अभी जब बोर्ड हो जाएगा ना तो ये आईपी बैंक का एग्जाम कब है, कोई डेट आया है क्या? सर हाँ रोहतक का डेट रोहतक आया का। 20th में है, तो इंदौर भी आसपास ही होगा सर। हाँ तो इसका मतलब अब का आप अपन क्या करेंगे ना, देखो बीच बीच में ऐसा नहीं कि बोर्ड का एग्जाम है तो पढ़ोगे ही नहीं, वोकेबलरी तो मैं दबा के कराऊंगा आपको, क्योंकि मुझे मजा भी आता है वोकेबलरी कराने में। तो पता है कैसे क्वेश्चन कराऊंगा, आ फिर देता हूँ। ईडीएम्स एंड फ्रेजल वर्ब भी करवा देना सर। हाँ वो मतलब वोकेबलरी सब पूरा आ जाता है। ये ठीक देखो है ऐसे सर। दिख रहा है ना ये, एवरीवन कैन सी दिस। यस सर। ये देखो ऐसे वाले क्वेश्चन बनाऊंगा आपको मैं। तो इससे क्या होगा ना कि आपको बहुत हेल्प हो जाएगी वोकेबलरी में, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्विकली बनेंगे मतलब, और बहुत सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। ओके देखो, सर। हाँ तो ऐसे ये कोशिश करेंगे, मीडियम फ्रेज कराऊंगा। देखो यार, अगर कोई भी चीज जो एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में आती है ना तो जनरल बच्चा करता है। आपके पास अगर जनरल की 50 सीटें क्यों है, 50% रिजर्वेशन है ना। व्हाट इज द रिजर्वेशन, 50% इज द रिजर्वेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन हाउ मोर कैन देन 50%। 50% बोर्ड का वेटेज भी है, जस्ट चेक द नो सर, नंबर। इन रोहतक हैज बोर्ड्स वेटेज, इंदौर डजंट ओके, हैव। देखो क्या होता है ना कि कुछ कुछ बच्चे तो खैर बहुत शार्प होते हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट वो 8-10 से ज्यादा नहीं होते, बाकी जो है सब उसी इंटरनेशनल स्कूल वाले। हाँ तो बाकी सब उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। सो आई डाउट, एंड सेकेंडली बहुत क्रीम बच्चा ना आईपी मैट में आता भी नहीं है, मतलब ठीक है शुरू के 10-12 होंगे अच्छे वाले। तो मुझे लगता है यू लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट टुडे, इफ यू गो होम एंड यू लुक एट द आरसीज विल फील यार आरसी के 5-6 बन जाते, पैराजंबल का पूरा फिल इन द ब्लैंक वाला बन गया, तो जो सर ने बोला था 30 क्वेश्चन सही करना कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम तो नहीं लगता है। तो पहले आपको पॉजिटिविटी लेके आनी है अपने अपने एक पेपर को इम्प्रेशन को लेकर के। अगर आप पॉजिटिविटी नहीं लेके आओगे तो आपको हमेशा वो चीज इतनी टफ लगेगी ना कि कहीं भी छोटी मोटी गलती हुई तो आप बोलोगे यार मुझसे नहीं होने वाला। ठीक है, सो डोंट वरी मच एंड आई वुड सजेस्ट दैट यू यू ऑल वी विल फोकस ऑन द राइट एरियाज, वोकेबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, वर्ड। देखो वर्ड यूसेज जो है ना बहुत डिफिकल्ट होता है, ये मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच वर्ड यूसेज बिकॉज एंडलेस वेराइटी है, इवेंचुअली वो करके आ रहा है वो बेस वो। हाँ स्पॉटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो एक सेंटेंस, देखो ये कंपैरिजन करना है तो बिकॉज वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लगाता है, तो ये देखना है कि वर्ड कौन सा है। एक बार आपने वर्ड को पकड़ लिया, फिर आप जब उसको कंपैरिजन शुरू करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा अच्छा यार ये वर्ड में गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो और मैं जब वोकैब कराऊंगा ना आपको तो मैं आपको कई बार ना आपको वर्ड्स बताता रहूंगा कि किसके सिमिलर साउंडिंग वर्ड कौन से हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है आपको, वर्चुओसिटी, ये दिख रहा है ना ये। यस सर। अब यस। इसमें जैसे ये वर्ड आया मेरे सामने तो मैं इसको बोलूंगा देखो बेटा वर्चुओसिटी, वर्चुअस एक वर्ड होता है, एक होता है वर्चुओसो, एक होता है वर्च्यू, एक होता है बाय वर्च्यू। समझ में आया? ये इसके वेरिएशंस हैं, ये आर है ना, ये ध्यान देना। अभी वर्चुओसो कौन होता है, वर्चुओसो वो होता है जो कोई एक्सेलेंट आर्टिस्ट नहीं होता, जैसे अगर Yes, sir. बहुत ही अनयूजुअल आर्टिस्ट है, बहुत पॉपुलर, पर्टिकुलरली इन क्लासिकल म्यूजिक एंड आर्ट, पेंटिंग एंड ऑल, तो उसको वर्चुओसो बोलते हैं। तो उसकी जो वर्चुओसो है उसकी वर्चुओसिटी हो जाएगी। तो ये मैक्के है, ये कार्टूनिस्ट है, ये ड्रॉ कर रहा है, तो ये वर्चुओसिटी गलत नहीं है उस बंदे के लिए। समझ में आया? तो आप बोलोगे सर ये वर्चुअस क्या होता है, वर्च्यू मतलब फुल ऑफ वर्च्यू। व्हाट इज वर्चुअस, इट्स एन एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है फुल ऑफ वर्च्यू। तो आप बोलोगे सर वर्च्यू क्या होता है, वर्च्यू मतलब हाई मॉरल क्वालिटी। समझ में आया कि नहीं? व्हाट इज वर्चुअस, हाई मॉरल क्वालिटी, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी, ये सब वर्चुअस है, सो शी वाज अ वर्चुअस वुमन।
मतलब दगेबाज नहीं है। तो ये वर्च्यूअस का रिश्ता इस वर्च्यू से है, और बाय वर्च्यू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ। समझ में आया? जैसे आप क्या लिखते हो, आई गॉट अ सीट इन IIM रोहतक बाय वर्च्यू ऑफ माई 12th स्कूल। तो कह रहा है इसे बाय वर्च्यू इज इक्वल टू बिकॉज ऑफ होता है। Yes, sir. तो अब ये तीनों Yes, sir. अलग अलग हैं, ये है सब में वर्च्यू यार, लेकिन जो जो बंदा थोड़ा रीड किया उसको फट से पकड़ लेगा यार कि ये वर्चुअसो अलग होता है और ये वर्चुअस अलग होता है। अब वो क्या करेगा हम एग्जाम में, वो ही विल रिप्लेस वर्चुअस विद वर्चुअसो, एंड यू विल फील देयर इज अ मिसफिट गोइंग ऑन बिकॉज मीनिंग बैठ नहीं रहा है। जैसे वो क्रॉस और क्रास वाला था, मैंने कहा था ना कि वो क्रॉस मतलब एनॉइड होता है, बिकॉज मैंने किसी मूवी में देखा था। बट जो वो क्रॉस जब वहां पर आया था ना, फोर्थ सेंटेंस में बोला ये क्रॉस सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पर, मेरे को लगा शायद ये अलग है, क्रास मेरे को याद आ गया। सो क्रास को उन्होंने ओ लगा दिया और आपको मतलब वो दे दिया, चकमा दे दिया उन लोगों ने। तो ये जो वर्ड यूसेज होता है ना, ये बड़ा आसान होता है प्रोवाइडेड यू जस्ट गेट दैट थिंग, अरे यार ये वर्ड गड़बड़ लगा है मेरे को। So you should know multiple meanings of the same word, and second you should be smart enough to spot। थोड़ा सा स्पॉटिंग वाला वो एक इंटेलिजेंस चाहिए, ठीक है? तो अपन करेंगे, Yes, sir. ट्राई टू क्रिएट क्वेश्चंस आल्सो, बिकॉज मुझे तो कोर्स बनाना ही है और इफेक्टिव कोर्स बनाना है। तो मैं कोशिश करूंगा कुछ क्वेश्चंस, ऐसा 5-6 क्वेश्चंस लेके आ गया जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, बट इट इज मोर अ गिफ्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन रादर देन ऑफ नोइंग द वर्ड। ऑब्जर्व करने वाला बंदा फट से पकड़ता है, तो यू नीड टू हैव अ ट्रेन्ड आई फॉर दैट। बट मुझे लगता है कि बहुत इश्यू नहीं होगा, एज यू कीप ऑन डूइंग मोर एंड मोर वोकैबुलरी एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, वो एक लैंग्वेज की बेंट आ जाएगी आप लोगों के अंदर। बट रिलाई मोर ऑन थिंग्स लाइक आरसी, things like fill in the blanks, because they are far more doable, and there are easy questions everywhere. If you count all the easy questions in the paper, it all comes down to the same cutoff जो गया है। But I must agree that the number of seats are very low यार, 50 सीट बहुत कम हो जाती है, ठीक है? वो अपने एग्जाम्स की तैयारी करो थोड़ा देर के लिए, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, हफ्ते में एक सेशन तो लूंगा, 2 भले ना लूं। यू कैन गिव मी द डेट्स ऑन विच यू वांट मी टू कीप द सेशन, सो दैट हम एक वोकैबुलरी करते रहेंगे, क्योंकि वोकैबुलरी आपकी 2 महीने में 1 महीने में नहीं होने वाली। Okay, sir. एंड Okay, sir. vocabulary is a welcome break from the boredom of writing board exams, I believe, है ना? ठीक है, Sir, हाँ बोलो ना। so what study plan or preparation strategy would you suggest for us? देखो अभी तो मैं आपके लिए एक सेशन दूंगा हमेशा, रोज का। आपका बोर्ड एग्जाम है नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो। द थिंग इज दैट ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम्स you solve lots of vocabulary questions and do lots of reading. This is something that you can do during the board exams, because full Yes, fledged sir. study नहीं हो पाएगी। आप ये करो कि नहीं सर आपके कोर्स में से पढ़ाई करेंगे, बोला कोर्स मत पढ़ो, आप क्या करो, मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन 600 क्वेश्चन 500-600 क्वेश्चन पड़े हैं ऐसे वाले, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, या आपकी पूरी शीट में शेयर कर लूंगा, आप पूरा करो। एनालॉजी की भी शीट पड़ी हुई है, मतलब आपको मैं within a span of these 2-3 months I will give you more than 5,000 words। 5,000 शब्द करने के बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे को, मेरे को लगता है। तो आप लेकिन रिटेन नहीं रहते ना सर। नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो छोड़ो ना, वो देखो जो मेमोरी में रहना है वो रहेगा, और जो नहीं रहना है नहीं रहेगा, उसको हम फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन होता क्या पता है आपको, बताओ ना क्या होगा। आपने एक वर्ड यहाँ पे देखा, वही वर्ड आपको कल पेपर में आएगा, वही वर्ड 4 दिन बाद फिर से पेपर में आएगा। When you come across the same word 5, 7, 8 number of times, तो आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए, एटलीस्ट एग्जाम तक याद रहेगा, उसके बाद में भले भूल जाओ। अब वो क्रॉस वाला जो वर्ड है ना, वो मैंने किसी मूवी में ब्लैक एंड व्हाइट देखा था इंग्लिश में बहुत साल पहले, आई डोंट नो व्हेन आई, बट वो इंप्रेशन क्रिएट हो गया ना यार, तो चिपक गया दिमाग के अंदर। कुछ तो लड़की बोलती है, व्हाई आर यू सो क्रॉस विद मी, तो मुझे चमक गया उस टाइम, कह रहे क्रॉस मतलब इसका मतलब गुस्सा है। तो क्या होता है ना कि वी ह्यूमंस हैव दैट इनहेरेंट इंट्यूटिव वे ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, and I see that in my daughter, she's hardly 3.5 now, और वो कुछ वर्ड पकड़ लेती है मतलब, and she starts using in the same context। Imagine कि वो उसको फर्जी वर्ड यूज करता है बहुत हिंदी में, ये तो फर्जी है, फर्जी मतलब इस फेक है, इनजेन्युइन है, and she uses at the right context that word। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि you people already have that inbuilt
mechanism to retain a word. Of course, उसकी चिंता बहुत रहती है, मुझे भी रहती है, अरे याद नहीं रहा तो क्या, वो चिंता मत करो, वो एक रिफ्लेक्टिव होता है, एक दिन अचानक से तुमको याद आ जाएगा, वो अच्छा होगा एग्जाम का दिन होगा। तो जब खाना खाते हो ना तो सोचते हो कि हजम होगा नहीं होगा, क्या होगा, है तो होगा, खाने का एंजॉयमेंट करते हो ना आप, तो वैसे ही व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, व्हेन यू आर रीडिंग, यू एंजॉय द प्रोसेस ऑफ रीडिंग, तो दिमाग में जाना चले जाएगा, और कहीं चले जाएगा नीचे, आप पता भी नहीं रहेगा आपको कि बैठा हुआ है, वो अचानक से बाहर आएगा एक दिन। ठीक है, सर Okay, तो sir. अभी आपके कोर्स से कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें? अभी मेरे कोर्स देखो, अगर आप चाहते हो कि नहीं बोर्ड एग्जाम इज फाइन विद मी, पैराजम्बल्स करें आप, ठीक है, और दूसरा है उसमें वोकैबुलरी ऐसे वाले क्वेश्चंस डाले हैं मैंने, उसी वो ग्रामर के, एक ग्रामर का फोल्डर है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिखेगा आपको, Yes, sir. तो आप वहां से करें, और रोज रीड करें, 1 घंटे की रीडिंग करें आप, बाकी कुछ मत करें। और आपसे मैं वो इडियम्स एंड फ्रेज की तो शेयर कर लूंगा शीट। सर रीडिंग की जगह आरसी सॉल्व करे तो कोई दिक्कत? आरसी मैंने कराया नहीं है, तो मुझे लगता है कर सकते हो, इफ यू वांट टू गो अहेड, सब कुछ डाला हुआ है उसके अंदर मैंने, इफ यू वांट टू गो अहेड एंड यू कैन कीप ऑन पिंगिंग मी कि सर मेरा इतना हो गया, मेरा इतना हो गया, मैं क्या करूं, बिकॉज आई वांट टू गिव दिस कॉमन इंस्ट्रक्शन टू एवरीवन। ओके सर। ठीक है, आप Okay, अभी sir. कि सर मैंने ये कर लिया, मैं ये कर, तो चूंकि नंबर बहुत कम है जनता की, तो मैं सबको पर्सनली भी बोल सकता हूँ ये मत करो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, क्योंकि किसी का मान लो कोई कॉमर्स का बंदा है, कोई साइंस का बंदा है, किसी को दिए दिक्कत है, कोई बोर्ड में कुछ पढ़ा ही नहीं है, सो आई डोंट वांट टू गिव अ कॉमन इंस्ट्रक्शन कि ये शुरू कर दो। ठीक है, Sir, editorial के hard words को revise करना जरूरी है? उसको कोई चीज देखो, लिख लो उसको ना जबरन याद मत करो, बट लिख लो कहीं पर, क्योंकि लिखने की प्रोसेस से पता है क्या होता है, मेमोरी में घुस जाता है कहीं पर। Okay, sir. सर तो अभी आरसीज, पैराजंबल और वोकैब की प्रैक्टिस कर लेना फिर। यस 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 यस, आंसर पैरा कंप्लीशन और जो बाकी सारे वर्ड यूजेज एंड ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं बाद में करेंगे, उसका। डोंट वरी, एक बार पैरा कंप्लीशन बाद में चालू कर, एक एक टॉपिक को पकड़ते हैं पहले, लेट्स फिनिश वन सेट एंड देन गो टू द नेक्स्ट सेट आफ्टर दैट, वंस यू फील कि हाँ एक कंफर्टेबल आ गया, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आई डोंट से दैट डू ऑल द पैराजंबल्स क्वेश्चन, try to finish 50-60 of them and then take a break from parajumbles and then go to some other topic, तब अपन जाएंगे पैराग्राफ कंप्लीशन पे। Answer for the exam, would you suggest us to do para completion first or para jumble? पैराजंबल करो पहले, Okay, sir. ठीक है, चलो फिर, है ना, आई विल जस्ट साइन ऑफ, मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीक, मोस्टली शायद मैं शादी वादी बिजी हूँ, 3 दिन शादियां हैं मेरे घर पे मतलब कि घर पे नेबरहुड में, मोस्टली नेक्स्ट वीक यू विल हैव ऑफ, मोस्टली विल पिक अप आफ्टर Okay, sir. ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, Good night, sir. गुड नाइट, बाय बाय।